Hello students, hope you all are doing good. Today I am here to revise chapter number 1 of Cmsl. Okay, so let's start. We are starting with what are the components of financial system. Madam, the components of financial system are number 1 financial market. फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई हम मैडम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले जो मैं पढ़ने वाली हूँ दैट इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. द फर्स्ट टॉपिक विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर वुड बी chapter number 1, first topic, what is financial market and functions of financial market. Madam, what is financial market and functions of financial market? As we all know that financial market consists of two segments, capital market and money market, a market where transactions or trading of financial or monetary terms takes place. ठीक है मैम. What are the functions? What are the functions of financial market? Number 1, mobilization and channelization. Number 2, facilitate exchange of assets without physical delivery. Number 3, it reduce cost by providing valuable information, determining the price of the security and liquidity of tradable asset. मैडम, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ various financial securities, various securities in terms of monetary terms takes place, that is financial market, where mobilization and channelization of assets takes channelization of our saving, हम अपनी saving mobilize कर सकते हैं. We can exchange our assets without physical delivery. ठीक है, we are getting valuable information at a reduced cost. We are able to determine the price of the security, be it a capital market or a money market, and second, the liquidity of tradable assets. So madam, mobilization and channelization, exchange of assets, reduced cost at providing information at a reduced cost, determining the price and liquidity of tradable assets. So meaning, number 1, meaning of financial market, and number 2, what are the functions of financial market. नंबर 3rd टॉपिक मैडम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट आर. थर्ड टॉपिक जो मैं पढ़ने वाली हूँ is types of financial market. Madam, what are the types of financial market? So madam, financial market, madam, financial market are of two types. Number 1, money market, and number 2 is capital market. What is money market, madam? Money market means a market where short term funds, dealing of short term funds takes place. Okay, the maturity in money market range from 1 day to 1 year. Both it is regulated by RBI as well as SEBI. What are the nature of transactions in this market? Madam, the transactions are in large amount and in very high volume. What are the examples? Examples are madam treasury bill, commercial paper and certificate of deposit. Money market एक ऐसा market where borrowing and lending of short term funds, borrowing and lending of short term funds takes place. Number 2, maturity is from 1 day to 1 year. It is regulated by both the markets, by both the regulatories, that is RBI and SEBI.
The transactions are large in volume and also high in volume. Examples, madam, treasury bill, commercial paper and certificate of deposit. This was money market. Capital market, madam, capital market is that part of financial system, ठीक है, that is concerned with the industrial security market, government security market and long term loan market. Capital market, madam, capital market के अंदर सिक्योरिटी मार्केट भी आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट भी आता है और लॉन्ग टर्म लोन मार्केट भी आता है. व्हाट इज दिस इज वेयर द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टेक्स प्लेस. ठीक है, पूलिंग ऑफ इंटरमीडिएट फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. देन it encompasses transferring of security. You can easily transfer the security from one person to another in the capital market. It is a barometer to economy. Examples of capital market: shares, stock, debentures, bonds. Okay, so what is capital market? इतने से points में हम capital market finish कर सकते हैं. Madam, capital market is that part of financial system that is concerned with number 1 security market, number 2 government security market, number 3 long term loan market. Then the market that serves the medium and long term liquidity needs of the borrower and lender, जहाँ पे लोगों को long term या medium term fund availability हो जाती है. हमने पढ़ा मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड अवेलेबल होता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड अवेलेबल होता है. देन वी आर पूलिंग द फंड्स टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट, वो भी फॉर द लॉन्ग टर्म. ठीक है, transfer of security is very easy in this type of market. It is a barometer to economy. What are the examples, madam? Shares, stock, debentures and bonds. ठीक है, so here we finish what is capital market and what is money market and what is capital market. Then we studied, madam, what are the functions, what are the functions of capital market. Madam, what are the functions of capital market? Number 1, to mobilize the resource. आप अपना जो सेविंग है उसको आप इन्वेस्ट कर पाओ. मोबिलाइज द रिसोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, आप सिक्योरिटीज बाय एंड सेल कर पाओ, प्राइस एफिशिएंटली डिस्कवर हो पाए एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. जब आप बाय कर रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो तो वो ट्रांजेक्शन प्रॉपरली सेटल हो रहा है कि नहीं. दीज आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट. नंबर 1, टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट. मेरे इन्वेस्टमेंट्स, मेरी सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी. मैं बाय और सेल कर सकती हूँ इस मार्केट में उस प्राइस पे जो मार्केट डिस्कवर कर रहा है. एंड आफ्टर बाइंग एंड सेलिंग एट द प्राइस विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द मार्केट, मैं उस ट्रेड को पूरा सेटल कर सकती हूँ. दैट इज द मेन फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट. What are the needs for capital market? Madam, the needs for capital market, again, to channelize and mobilize the fund. मेरा फंड मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, मेरा फंड चैनलाइज हो गया. To provide an effective source of investment, it plays a vital role in mobilizing the saving for investment in productive assets. A medium for risk management. ठीक है, it tends to improve information quality because yes, it is a market which provides all the information which is necessary for the investor's decision, right? And its supporting period of technical progress and economic development. Okay, so it plays a crucial role. It plays a crucial role. Capital market make it possible for the company to give its shares to the employees, while ESOP to provide a currency for acquisition. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्वैप. ठीक है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फंड्स इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड कंपनी गेट्स एन एग्जिट ऑप्शन. जब कंपनी लिस्ट होती है कैपिटल मार्केट में, ठीक है, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. तो मैडम कोई भी आप 6 पॉइंट बता दो. ठीक है, तो 6 पॉइंट्स में अगर मैं नीड फॉर कैपिटल मार्केट लिखूँ तो सबसे पहले मैं लिखूँगी चैनलाइज एंड मोबिलाइज फंड. Number 1. Number 2, efficient source of investment. Source of investment. Number 3, mobilizing saving.
Number 4, medium for risk management. Number 5, ESOP, share swap. Easy exit opportunity. And efficient price discovery. Madam, these are the needs of capital market. Clear? We completed 5 points in this revision कि what are the needs of capital market. अब कैपिटल मार्केट के अंदर ही एक सेगमेंट, अभी तक मैंने जो पढ़ा, जो 5 पॉइंट्स, वो मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ कि मैडम व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, what are the functions of financial market we studied, then we studied the types of financial market, that is money market and capital market. Money market, madam, short term arrangement of funds, example treasury bill, commercial papers, ठीक है, regulated by both RBI and SEBI. Capital market, madam, यहाँ पे this is the market which concerns of security market, government security market, long term loan market. It is regulated by SEBI, some part from RBI, ठीक है. What are the examples? Debentures, shares, stocks, bonds, ठीक है. Mobilize saving, from saving to investment. Then we studied, madam, what are the functions of capital market, what are the needs of capital market. और अभी मैं पढ़ रही हूँ capital market का एक segment, that is security market. Madam, what is security market? What is security market? मेरी क्लास का 6th point, what is security market? Security market means a market where the company raise fund by issuing the security such as equity shares, debt securities, derivative mutual funds to the investor, and in place where investor can buy and sell various securities. What is security market? Madam, security market capital market का एक part है. What is capital market? Capital market is a market where buying and selling of फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस. तो उसमें एक सेगमेंट है कैपिटल मार्केट के अंदर सिक्योरिटी मार्केट. एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कंपनी आती है, कंपनी पब्लिक से फंड रेज करती है, पब्लिक उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है एंड इन रिटर्न कंपनी उनको वेरियस सिक्योरिटीज अलॉट करके देती है. क्या सिर्फ यहीं तक है सिक्योरिटी मार्केट? नहीं मैडम, इसके बाद वो सिक्योरिटीज़ जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे लिस्ट होती हैं और उसके बाद जाके वो बायर्स एंड सेलर्स उस प्लेटफॉर्म पे जाके, वो इन्वेस्टर्स उस प्लेटफॉर्म पे जाके उस सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं और कोई और पब्लिक उसको या कोई और इन्वेस्टर उनको बाय कर सकते हैं. सो इसीलिए यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लेके हैं. सिक्योरिटी मार्केट इज अ प्लेस वेयर द कंपनी रेज फंड एंड अलॉट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, प्लस it is also a market where the investor can buy and sell or trade in this particular securities. Clear? Therefore, a market where financial instruments are commonly, ठीक है, available and can be easily transferable by means of sale. ठीक है. Once the shares are issued to the public, the company is required to list the same. What are the functions of security market? It allows the people टू डू मोर विद द सेविंग. अपनी सेविंग को वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग द, जिसको ज़रूरत है फंड की, ठीक है, उनको फंड मिल जाएगा. द सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड्स अ लिंकेज बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एंटिटी. ऑल्सो इट इज़ अ मार्केट प्लेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़. द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट मेक्स इट पॉसिबल टू satisfy simultaneously the need of the enterprise. of again the repetition of the point कि जिसको ज़रूरत है उनको फंड मिल जाएगा. मेरे पास फंड है, आई एम एन इन्वेस्टर, मुझे डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना है,
तो मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, जिसको फ़ंड की ज़रूरत है जैसे कि कंपनी, उनको फ़ंड मिल जाएगा। सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा प्लेस है जो लिंक करता है इन्वेस्टर्स और कंपनीज को बाय परचेज और सेल्स ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, ठीक है। it increase the wealth of our investment, okay. it allows the individual, अगर एज एन इंडिविजुअल मैं कुछ बिग एक्टिविटीज़ या कुछ बिग इन्वेस्टमेंट्स या बिग प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकती हूँ, सो आई कैन इन्वेस्ट इन द कंपनी विच इज़ लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट्स, राइट। सो आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो कि IPO ला रहे हैं या जो पब्लिक से फंड रेज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर काम लाइक सोलर या रियल एस्टेट, ये सब करने के लिए। तो मैडम इसको समराइज कैसे करें, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट? नंबर 1, pooling of savings, then availability of funds, जिनको फंड की ज़रूरत है उनको फंड मिल जाएगा, मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी अपॉर्चुनिटीज़ की, मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इट इज़ अ लिंकेज बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स, ओके। यू कैन बाय एंड ऑल्सो सेल इन दिस मार्केट, ठीक है। इट इंक्रीजेज द वेल्थ and then obviously it is a next point is the repetition. So these are the 5 points where we studied what are the functions of security market. Madam, what is security market? Security market is a market where the company raises fund from the public and in return they allot them the securities, plus it is also a market where buying and selling of these securities takes place between the investors, okay. ऑल्सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। हमने फिर बहुत सारे फंक्शंस पढ़े कैपिटल मार्केट के, एंड इट्स फंक्शंस। 7th point we are studying is what is the segment of सिक्योरिटी मार्केट। मैडम सिक्योरिटी मार्केट के कितने सेगमेंट हैं? सिक्योरिटी मार्केट के मैडम 2 सेगमेंट्स हैं। सिक्योरिटी मार्केट के मैडम 2 सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी मार्केट, नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट मैडम? प्राइमरी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट, दैट पार्ट ऑफ और दैट सेगमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट जहाँ पे कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड लेने के लिए प्रपोज कर रही है या अनाउंस कर रही है। अ प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इशू न्यू इंस्ट्रूमेंट्स to the public. We can say for the very first time company is raising the fund from the public, and when the company receives the fund, in return company allot them the securities, and at the same time company is getting its shares listed on the stock exchange. Madam, primary market मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स ला रही है इस मार्केट पे, फंड रेज कर रही है, सिक्योरिटीज अलॉट कर रही हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट उन्हीं सिक्योरिटीज को लिस्ट भी करा रही है. दैट इज द प्राइमरी मार्केट, द प्लेस वेयर for the very first time the company enters, raise fund from the public, allot them the securities and listed on the stock exchange. That is primary market. What is secondary market madam? जब प्राइमरी मार्केट में शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं, जब ये शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं, फिर जब इनकी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग मतलब मैडम जब कोई और इनको बाय करेगा फिर सेल करेंगे, तो दैट कम्स इन सेकेंडरी मार्केट.
So these are the two segments of security market, that is number 1 the primary market and secondary market. Primary market, issue of new instruments, ठीक है, the central government or the state government, various public sector undertaking, statutory or other authorities, they also issue bonds and debts, ठीक है, तो central government, state government also issue securities. A primary market deals in issue of new instruments, ठीक है, flow of fund for productive purpose, it creates and offer the merchandise for secondary market. Obviously अगर आप primary market में list ही नहीं करोगे तो वो security secondary market में trade नहीं होगी, तो it is a base for secondary market. किस तरीके से होता है मैडम? जब कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है. सिंपल सी बात मैडम, प्राइमरी मार्केट अ मार्केट वेयर कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, अलॉट न्यू सिक्योरिटीज to the investors, ठीक है, and at the same time get these securities listed on the stock exchange so that these securities can be further traded on the secondary market, that is primary market, ठीक है. What is secondary market? Madam, a market for trading and settlement of security which has already been issued. Already been issued मतलब वो प्राइमरी मार्केट में कंपनी इशू करके लेके आई थी, अब उसका जब ट्रेडिंग हो रहा है, उनका सेटलमेंट हो रहा है. द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इशूड सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर, फिजिकल लोकेशन लाइक स्टॉक एक्सचेंज और अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लिक्विडिटी होती है एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट. So this is secondary market where you are trading and settling the securities which has already been issued in primary market. So that is secondary market. Clear? कुछ differences हैं यहाँ पे, difference between. Okay. So here we finish part A of this chapter. Here we finish पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हमने पढ़ा मैडम व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. एक बार अगर मैं फिर से रिवाइज करूँ कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो मैं पढ़ूंगी मैडम फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस है मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ठीक है, facilitate exchange of assets without physical delivery, it provides valuable information at a reduced cost, determining the price of the security and liquidity to the tradable assets. फिर मैंने पढ़ा मैडम फाइनेंशियल सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक मनी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट मीन्स अ मार्केट वेयर बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक्स प्लेस, ठीक है मैडम. मेच्योरिटी 1 day to 1 year, regulated by both RBI and SEBI. The nature of transactions in this market are basically large volume and very large amount. Treasury bills, commercial papers, certificates of deposits are the examples of money market. Capital market एक ऐसा market that is concerned with the security market, that government security market and long term loan market. It is a market where buying and selling of financial securities takes place. अवेबिलिटी ऑफ फंड्स दैट इज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है. लिक्विडिटी है, प्राइस डिस्कवरी होता है. इट ऑल्सो एनकम्पासेस और ऑल्सो मेक्स अवेलेबल द ट्रांसफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो ईजी लिक्विडिटी भी आ जाती है. एग्जाम्पल्स ऑफ सिक्योरिटीज विच आर डील्ड इन कैपिटल मार्केट, सो मैडम शेयर, स्टॉक्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है. देन वी स्टडीड मैडम कैपिटल मार्केट तो पढ़ लिया. व्हाट आर द functions of capital market? To mobilize the resources for investment, to facilitate buying and selling, to facilitate the process of price discovery and the settlement of transaction. What is the need of capital market? वो 6 points में मैंने आपको लिखवा दिया. What is security market and its functions? तो मैंने पढ़ा security market is a part of capital market. It is a market where the company raises fund from the public, issue and allot them the securities, ठीक है, get them listed. Plus, it is also a market where buying and selling of the securities takes place. Then मैंने पढ़ा कि मैडम what are the functions of security market? उसके लिए भी मैंने 5 points पढ़ लिए, मैंने शॉर्ट में 5 points लिख भी लिए.
और फिर मैंने पढ़ा मैडम सिक्योरिटी मार्केट के कौन से दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। तो सिक्योरिटी मार्केट के कौन से दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं? सबसे पहला प्राइमरी मार्केट, अ मार्केट वेयर द कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंटर्स इनटू द कैपिटल मार्केट, रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, इशू एंड अलॉट देम द सिक्योरिटीज, गेट इट लिस्टेड, दैट इज प्राइमरी मार्केट। यही ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज जब ट्रेड होती हैं, दैट कम्स इन secondary market. So here we ends part A of this chapter. Part B, coming to part B, that is regulatory authorities. पूरे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो मनी मार्केट है और जो कैपिटल मार्केट है, उसमें भी जो कैपिटल मार्केट है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है मैडम? कैपिटल मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको कौन रेगुलेट कर रहे हैं? तो मैडम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, सबसे पहला एक्ट जो सिक्योरिटी मार्केट के लिए आया, दैट इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड कंपनीज एक्ट 2013. So a company which is incorporated under Companies Act and a company which has been incorporated under Companies and who is proposing to issue shares or to raise fund from the public, उनको comply करना पड़ेगा Companies Act के साथ साथ SCRA, depository और SEBI का compliance भी. So what are the regulatory framework for security market? तो मैडम अगर आप security market में enter करते हैं, चाहे आप इशूअर हो, चाहे आप कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपको किन सारे एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 2013. तो यहाँ पे मैंने आपको पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट और पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट भी बता दिया. नंबर वन, द वन हु इज लॉन्चिंग और इंट्रोड्यूसिंग द सिक्योरिटीज, दैट इज इशूअर, जो कंपनी भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी हो सकती हैं. नंबर टू, इनको जब सिक्योरिटीज, जिन इशूअर्स को जब सिक्योरिटीज इशू करनी होती है, फंड रेज करना होता है, तो दे टेक हेल्प और सर्विसेज ऑफ वेरियस कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज. तो नंबर टू पार्टिसिपेंट्स आर वेरियस कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, जो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे. प्लस थर्ड पार्टिसिपेंट्स आर द इन्वेस्टर्स, जिनका फंड इस मार्केट में लगा है. इन सब को कौन कौन से एक्ट रेगुलेट करते हैं मैडम? तो इन सबको SCRA, सेबी, डिपॉजिटरी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट रेगुलेट करता है. सो दिस इज पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर. कि व्हाट आर पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर? रेगुलेटरी अथॉरिटीज. व्हाट आर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज मैडम? SCRA 1956, SEBI 1992, Depository Act 1996 and Companies Act 2013. और इसी के साथ हमने डिस्कस किया व्हाट आर द कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज. क्लियर? ठीक. सॉरी, इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस सिक्योरिटी मार्केट, इशूअर, वेरियस कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज एंड वेरियस इन्वेस्टर्स. ओके. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर डील्ड इन कैपिटल मार्केट.
equity shares. Number 2, equity shares with differential voting rights. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा पहले तो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ व्हाट द डिविजन्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट के अंदर पढ़ा सिक्योरिटी मार्केट. अब इस मार्केट को कौन कौन रेगुलेट करता है वो हमने पढ़ा पार्ट 2 में. अब इस मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ के साथ डीलिंग होती है तो अब हम वो पढ़ रहे हैं. तो पहली सिक्योरिटी जो कैपिटल मार्केट में डील होती है दैट इज इक्विटी शेयर्स. वी ऑल नो इक्विटी शेयर्स मतलब अ शेयर्स विच कैरी वोटिंग राइट्स. ठीक है. Number 1, equity shares, we all know that section 43 provides for the equity share capital. They are the members of the company having voting rights. Now there are two types of equity shares with normal voting right, equity shares with differential voting rights. तो अगर आपको equity shares with differential voting right issue करना है तो आपको कौन कौन से conditions का fulfillment करना पड़ेगा. Number 1, आपका आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए. ठीक है. The voting power, ठीक है, the voting powers of the shares with differential voting rights shall not exceed 74% of the total voting power including voting power in respect of equity shares with differential voting right. कहने का मतलब टोटल का 74% से ऊपर आपका डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स नहीं होने चाहिए. यू हैव टू गेट द अप्रूवल बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. कंपनी डिफॉल्ट नहीं कर रही हो, द कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. द कंपनी हैज़ नॉट नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, repayment of mature deposit, redemption of preference shares. ठीक है. The company has not defaulted in payment of dividend, repayment of term loan, statutory dues of the employees, या फिर the company has not been penalized by RBI, SEBI, Foreign Exchange Management Act, SCRA Act. ठीक है. तो ये सारे डिफॉल्ट्स कंपनी ने ना किए हो, plus the company has not defaulted in filing annual return and financial statement for the last 3 years immediately preceding the financial year, and कंपनी का आर्टिकल ऑथराइज कर रहा हो, कंपनी ने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया हो, एंड द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शेल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. मतलब जितने टोटल इक्विटी शेयर्स हैं उसके 74% से ज़्यादा आपका डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स नहीं हो सकते. सो दीज आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बिफोर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. नॉर्मल इक्विटी शेयर्स वी ऑल नो. Second capital market instrument, equity shares with differential voting rights together with the conditions. Third instrument, that is preference shares. Preference shares means, preference shares are that part of company's share capital which carry preferential rights. Preferential right to what, madam? Preferential right to a dividend at a fixed rate and repayment of capital in case of winding up. क्लियर. व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? मैडम इनको दो चीज़ का प्रेफरेंस मिलता है. नंबर 1, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा. दूसरा जब वाइंड अप होगा तो पहला प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा पेमेंट के लिए, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स. What are the kinds of preference shares? We have already discussed this earlier in our classes, that what are the kinds of preference shares, madam? Cumulative and non-cumulative. Dividend cumulate होगा, dividend cumulate नहीं होगा. Convertible and non-convertible, madam, आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट होंगे या आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे. पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर. So 3 instruments we studied till now. Number 1, equity shares. Number 2, equity shares with differential voting rights and the conditions for issuing equity shares with differential voting rights, and then preference shares and its type. Fourth is debentures. What is debentures? Madam, debentures means debenture includes
स्टॉक बॉन्ड्स आर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग डेप्ट। मैडम डिबेंचर एक तरीके का डेप्ट है, भले ही आपने उसको सिक्योर्ड मतलब आपने उस पर चार्ज क्रिएट किया हो या नहीं किया हो, डिबेंचर मीन्स अ काइंड ऑफ डेप्ट which the company is raising. Okay, what are the important features of debentures? It is a certificate of indebtedness कि कंपनी ने उधार लिया है, कंपनी ने लोन लिया है एक तरीके का, ठीक है. इट इंडिकेट्स द, वहाँ पे उसमें डेट ऑफ रिडेम्पशन होता है एंड ऑल्सो द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज इंक्लूडेड. अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो उस पर चार्ज क्रिएट होगा. डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता मैडम. द कंपनी शेल पे इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. क्लियर. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. अभी तक हमने जो पढ़ा ना इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, वो कंपनी के कैपिटल में आता है, ठीक है. दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कंपनी के कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बनते हैं. अभी जो मैं पढ़ रही हूँ डिबेंचर्स, ये कंपनी के कैपिटल में पार्ट नहीं बनते हैं, ये कंपनी की बोरोइंग में पार्ट बनते हैं क्योंकि कंपनी ने इसको एज अ लोन लिया है. डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनडेप्टनेस. इसमें डेट ऑफ रिडेम्पशन की, हाँ भाई इतने टाइम के बाद मैं आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दूंगा, द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. इन केस ऑफ सिक्योर डिबेंचर इट इज़ क्रिएटेड, तो चार्ज क्रिएट होता है, वोटिंग राइट्स नहीं होते इनके पास, एंड द कंपनी शेल पे इंटरेस्ट विद रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. वी स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो, दैट इज फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन convertible debentures, partly convertible debentures, okay, a part in which some part of the debenture would be converted into equity and other would not be converted, ठीक है. ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे डिबेंचर्स के. क्लियर. सो दीज आर द थोड़ा थोड़ा रिविजन जो हमने सबके बारे में किया वो ये था. नंबर 3, मैडम ये दोनों, ये सब कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बनता है. देन वी स्टडीड डिबेंचर्स and its features, and then we studied अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉन्ड्स. बॉन्ड्स क्या है मैम? बॉन्ड्स भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है विच कैरीज a specific rate of interest. Okay, it is a debt securities where a issuer is bound to pay a specific rate of interest. The bond holders are like a creditor. They have a face value, ठीक है, fixed maturity date. All bonds, the principal amount would be repaid after maturity. Regular interest दिया जाता है इनको, ठीक है. इंटरेस्ट को हम कूपन रेट भी बोलते हैं. क्लियर. सो बॉन्ड इज ऑल्सो सिमिलर. बॉन्ड इज ऑल्सो, वी कैन से इट इज ऑल्सो अ डेप्ट सिक्योरिटी विच कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट. इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का पार्ट बनते हैं मैडम. डिबेंचर्स एंड बॉन्ड बोरोइंग का पार्ट बनते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टैक्स सेविंग बॉन्ड्स. सो दिस इज, अभी तक जो मैंने पढ़ा वो मैंने ये पढ़ा, अभी तक जो मैंने पढ़ा वो मैंने पढ़ा कि मैडम कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं. तो कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ डील हो सकती हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं. तो दो कैपिटल फॉर्मेशन वाली सिक्योरिटीज़ इशू होती है. नंबर 1 इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट एंड प्रेफरेंस शेयर्स. दूसरा, अगर मैं डेप्ट सिक्योरिटीज़ की बात करूं तो डिबेंचर्स एंड इट्स टाइप, बॉन्ड्स एंड इट्स टाइप, ठीक है. अब एक अलग तरीके की सिक्योरिटी मैं पढ़ने वाली हूँ, दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड फॉरेन FCCB एंड FCEB.
चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी और इंस्ट्रूमेंट वी कैन से दैट इज FCCB, foreign currency convertible bond. It means a bond which is issued by the Indian company, ठीक है, in foreign currency and the principal and interest in respect of which is payable in foreign currency. मैडम अगर इंडियन कंपनी को बाहर से फंड रेज करना है तो यहाँ की पब्लिक से फंड रेज करना है तो ये फॉरेन करेंसी में फंड रेज करेंगे और ये कंपनी इन रिटर्न इनको एक फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर देगी और वो भी इन फॉरेन करेंसी एंड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेएबल इन फॉरेन करेंसी. FCCB आर द अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स विच कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, FCCB शैल बी डिनोमिनेटेड in any freely convertible foreign currency. So basically अगर इंडियन कंपनी को फंड रेज करना है बाहर की पब्लिक से तो वो बाहर की पब्लिक से फॉरेन करेंसी में फंड रेज करेंगी और इंडियन कंपनीज उनको बॉन्ड इशू करके दे देंगी, दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. ठीक है, however it must be kept in mind that FCCB issued, ठीक है, need to conforms to ECB and use of requirement. Okay, we will not study this. हम ये बोलेंगे कि what is FCCB? It means a bond which is issued by the Indian company in foreign currency and even the principal and the interest is payable in foreign currency. Okay, it carries a fixed rate of interest and it is freely convertible foreign. It shall be denominated in foreign currency. Clear? वैसे एक और इंस्ट्रूमेंट आता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड. What is foreign currency exchangeable bond? Madam, foreign currency FCEB. What is foreign currency exchangeable bond? ये एक इंडियन कंपनी है XYZ लिमिटेड. ठीक है, इनको फंड रेज करना था फ्रॉम द पब्लिक ऑफ US एंड UK. ठीक है मैडम, तो इन पब्लिक ने इनको फंड दिया, इन रिटर्न इस कंपनी ने इनको बॉन्ड्स इशू कर दिए. ओके, आफ्टर मैच्योरिटी दे साइंड वन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अनदर कंपनी नेम ABC लिमिटेड कि आप इन पब्लिक से बॉन्ड ले लीजिए एंड इन रिटर्न इनको अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दीजिए. सो आफ्टर मैच्योरिटी XYZ लिमिटेड के जो बॉन्ड होल्डर्स थे वो बन जाएंगे शेयर होल्डर्स ऑफ ABC लिमिटेड एंड ABC लिमिटेड बन जाएगी बॉन्ड होल्डर ऑफ XYZ लिमिटेड. XYZ इंडियन कंपनी रेज फंड इन फॉरेन डिनोमिनेशन फ्रॉम अ पब्लिक ऑफ फ्रॉम फॉरेन और फ्रॉम अ पब्लिक ऑफ US and UK and issued them the bonds. After maturity the bond holders they are getting the shares from another Indian company जिसकी वो bond holder नहीं है. So this is foreign currency exchangeable bonds. Okay, it is used to raise fund from international market against the security. The bond is expressed in foreign currency. The principal and interest is also payable in foreign currency. Issuing by an Indian company. It is subscribed by the people outside India, but it is exchangeable into equity shares of an other company. मैंने वही बताया कि equity shares आपको उस कंपनी के नहीं मिल रहे जिस कंपनी के आपको bonds मिल रहे थे, आपको equity shares किसी और इंडियन कंपनी के मिल रहे हैं. The fund in foreign currency was raised by one Indian company and that company issued bonds to the public in foreign currency. ठीक है, later on they are becoming the shareholder, the bond holders are becoming the shareholder of the same company. No madam, they are becoming the shareholder of another company. Clear? So this is FCCB and FCEB. FCCB, you are becoming the shareholder
in the same company where you were holding a bond, but in FCEB you are becoming the shareholder of not the same company who are issuing the bond, but for you are becoming the shareholder of another Indian company. That is the main difference between FCCB and FCEB. नाउ अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 7, दैट इज IDR, और नंबर 8 GDR या तो फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दैट इज ADR. अगर इंडियन कंपनी को सपोज करो इंडियन कंपनी को अपने शेयर्स बाहर इशू करने हैं, अगर इंडियन कंपनी को अपने शेयर्स बाहर इशू करने हैं तो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स लिस्ट करने पड़ेंगे. तो मैडम ऐसे कैसे चलेगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में और वो अपने शेयर्स बाहर लिस्ट करे, ऐसा नहीं हो पाएगा. तो इफ़ द कंपनी वांट्स टू रेज फंड फ्रॉम outside India and they want to get their securities listed on the stock exchange outside India, what they will do madam, एक इंडियन कंपनी यहाँ के बैंक को सिक्योरिटीज इशू करेंगी. This bank will approach overseas bank, provide them the securities of these securities, and this overseas bank will issue receipts on the stock exchange इन अब्रॉड. ठीक है. सो दिस इज ADR और GDR. यहाँ की कंपनी को फंड चाहिए था, उन्होंने यहाँ की बैंक को अप्रोच किया और उनको सिक्योरिटीज इशू की. यहाँ की बैंक को अप्रोच किया और उनको सिक्योरिटीज इशू करी. ठीक है. और इस सिक्योरिटी के बेसिस पे यहाँ की बैंक ने ओवरसीज बैंक को अप्रोच किया और इस ओवरसीज बैंक ने इस सिक्योरिटी के बेसिस पे बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में एक रिसिप्ट इशू करी जिसको वहाँ के लोग ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक एक्सचेंज पे, दैट इज GDR और ADR. व्हाट इज IDR? अगर बाहर की कंपनियाँ, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इफ़ दे वांट दैट देयर सिक्योरिटीज़ आर रिक्वायर्ड, इफ़ दे वांट कि उनकी सिक्योरिटीज़ यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करें, तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट दे विल डू, दे विल इशू IDR. वो वहाँ के बैंक को अप्रोच करेंगी, उनको सिक्योरिटीज़ इशू करेंगी, वहाँ की बैंक इंडियन बैंक्स को अप्रोच करेंगे, ओवरसीज़ कस्टोडियंस को अप्रोच करेंगे. उस सिक्योरिटी के बेसिस पे यहाँ के बैंक्स जो हैं वो यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ जनरेट करेंगे ताकि यहाँ की पब्लिक जो है वो IDR में ट्रेड कर पाए. सो दैट इज़ IDR, GDR एंड ADR. होप आपको इस कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई होगी. ठीक है. उसके बाद मैंने पढ़ा था नंबर 9 इज डेरिवेटिव्स. व्हाट इज डेरिवेटिव्स? मैडम, डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग और सेलिंग. ठीक है. द वैल्यू ऑफ विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट. मैं फिर से रिपीट करती हूँ मैडम, व्हाट इज़ डेरिवेटिव. मैं सिर्फ एक सेंटेंस में डेरिवेटिव यहाँ पे फिनिश करूँगी कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव. मैडम, डेरिवेटिव आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज. ठीक है. एट अ फ्यूचर डेट, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. ठीक है.
द वैल्यू ऑफ विच इज़ डिराइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट्स। अब इसमें क्या होता है मैडम, इसके कितने टाइप्स हैं, टाइप्स के अंदर भी कौन कौन से और सब टाइप्स हैं, वो सब अपन जब डेरिवेटिव सेकेंड चैप्टर में एक बार रिवाइज करेंगे तब पढ़ेंगे। आज के लिए व्हाट इज डेरिवेटिव मैडम, इट इज़ अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज at a predetermined price at a future date, the value of which is derived from an underlying assets। सिर्फ ये दो लाइन इज इनफ। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और उसके कंडीशंस, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट इज डिबेंचर्स एंड इट्स फीचर्स एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज बॉन्ड्स, अगेन डिबेंचर्स ऑन बॉन्ड्स, सिक्योरिटी जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, FCCB, FCEB, FCCB जहाँ पे इंडियन कंपनी फ्रॉम द पब्लिक ऑफ US और UK फंड रेज कर रही हैं इन फॉरेन करेंसी, उनको बॉन्ड इशू कर रही है और मैच्योरिटी के बाद उनसे बॉन्ड लेके उनको उसी कंपनी के शेयर्स इशू कर रही है। FCEB इंडियन कंपनी अगर इशू कर रही हैं फ्रॉम द पब्लिक ऑफ US और UK, उनसे फंड ले रही हैं फॉरेन करेंसी में और उनको बॉन्ड इशू कर रही हैं एंड आफ्टर मैच्योरिटी उनको शेयर्स अपनी ही कंपनी के इशू नहीं करके दे रही हैं बट कोई और कंपनी उन बॉन्ड होल्डर्स को अपने इक्विटी शेयर्स इशू करके दे रहा है, दैट इज FCEB फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। IDR मैंने पढ़ा, IDR जहाँ पे इफ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इफ दे वांट देयर सिक्योरिटीज टू बी ट्रेडेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो वो कैसे सिक्योरिटीज इशू करेंगी मैडम, वो वहाँ के बैंक को अप्रोच करेंगे, उनको अपनी कंपनी के सिक्योरिटीज़ इशू करेंगे, वो कंपनी जो है, वो बैंक जो है उस सिक्योरिटीज़ को लेके यहाँ के बैंक को अप्रोच करेंगे, यहाँ के ओवरसीज़ कस्टोडियन को अप्रोच करेंगे और यहाँ के बैंक्स फिर उस सिक्योरिटी के बेसिस पे इंडियन स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज़ जनरेट करेंगे जो कि यहाँ की पब्लिक ट्रेड कर पाए, दैट इज़ IDR। व्हाट इज़ GDR और ADR, अगर इंडियन कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज़ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करवानी है तो उनको पहले यहाँ के बैंक्स को, यहाँ के जो बैंक्स हैं उनको सबसे पहले सिक्योरिटीज़ इशू करके देनी पड़ेंगी। उस सिक्योरिटी के बेसिस पे वो बैंक्स जो हैं ओवरसीज़ बैंक को अप्रोच करेंगे, ओवरसीज़ बैंक जो है वो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज पे इसी सिक्योरिटी के बेसिस पे सिक्योरिटीज़ ADR और GDR जनरेट करेंगे और फिर वहाँ के लोग उस पर ट्रेड कर पाएंगे वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज़ GDR और ADR। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स। 10th is warrants। What is warrants? Madam, warrants is basically and which it means an option। एक ऑप्शन है जो कंपनी देती है वारंट होल्डर्स को कि एक टाइम के बाद मैं आपको इस वारंट की जगह इक्विटी शेयर्स इशू करके दूंगी at a discounted price, that is warrant। It is an option given by the company where the buyer is granted the right to purchase a number of equity shares at the exercise price जो basically normal price से कम होता है, so that is warrant। It is an option which is given by the company where the buyer is granted the right to purchase the number of shares or of its equity number of, the buyer is granted the right to purchase the number of equity shares at the price exercise price which is obviously some discounted price from the as compared to the current price, ठीक है, so that is warrant। What is securitized debt instrument? What is securitized debt instrument? Securitized debt instruments basically these are the financial securities that are created by the securitizing individual loan, ठीक है। Basically what is securitized debt instrument, अगर मैं इसकी बात करूँ, okay, नेक्स्ट इज सिक्योरिटाइज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली मैडम अगर एक कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, इनकी जो लोन्स, इनकी जो बोरोइंग्स हैं, इन्होंने एक और एंटिटी को ट्रांसफ़र कर दी और इस लोन या डेप्ट को बेस में रखते हुए
इस एंटिटी ने मार्केट में सिक्योरिटीज इशू कर दी, दैट इज securitized debt instruments. The entity is issuing security on the basis of the debt which has been taken by another company. So that the entire इस पूरे process को हम बोलते हैं securitization. It is a financial process that involves issuing securities that are backed by the assets commonly known as debt. आपने securities issue की किसके basis पे मैडम? इस डेप्ट के बेसिस पे मार्केट में सिक्योरिटीज इशू की. द असेट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिक्योरिटीज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन. द ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज रिसीव्स एन इनकम फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज असेट्स बैक्ड सिक्योरिटीज. One of the most common types of securitized debt is mortgage backed securities. So basically a security that is created by securitizing individual loan, that is securitized debt instrument. Security create हो रही है on the basis of debt of any other person. उसके उनके debt के basis पे market पे security issue हो रही है, that is securitized debt instrument. इसको हम बोलते हैं asset securities backed by assets या तो फिर mortgage backed securities. Clear? देन हम लास्ट दो इंस्ट्रूमेंट्स जो मैं पढ़ने वाली हूँ, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको मैं बोलती हूँ रिट. इट इज़ अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. ठीक है, इट इज़ अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट ओन्स, ऑपरेट एंड फाइनेंस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट. ये एक ऐसी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है. रिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स यूज़ करती हैं कि आप पब्लिक से फंड लीजिए और उसको रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में, रियल एस्टेट से जो इनकम जनरेट हो सकती है, जो प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए. व्हाट आर द फीचर्स मैडम? लेस कैपिटल इंटेंसिव, नंबर 1. नंबर 2, सूटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स. अगर मैं डायरेक्टली रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती हूँ. ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, अश्योर्ड डिविडेंड मिलता है, टैक्स फ्री होता है, फास्ट कैपिटल अप्रिसिएशन होता है एंड ईजी टू बाय एज कम्पेयर टू एक्चुअल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज़ रिट मैडम? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स यूज़ करती हैं, जो पब्लिक से फंड लेती हैं और रियल एस्टेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती हैं और वहाँ से उनको प्रॉफिट या अर्निंग या इनकम जनरेट करके देती हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस रिट मैडम? इट इज़ लेस कैपिटल इंटेंसिव. आज के टाइम पे अगर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने जाऊँगी तो मोर देन करोड़्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. एक रिट खरीद के मैं एक छोटा सा पार्ट ऑफ उस सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ. तो लेस कैपिटल इंटेंसिव, सूटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, ट्रांसपेरेंसी होती है बिकॉज इट इज़ लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट सो आई नो द प्राइस डिस्कवरी, अश्योर्ड डिविडेंड, टैक्स फ्री, फास्ट कैपिटल अप्रिसिएशन एंड ईजी टू बाय. दिस इज फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो मैं पढ़ रही हूँ, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. सेकेंड आई एम स्टडिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इट इज़ ऑल्सो लाइक मैम एक ऐसी स्कीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं और उसके बाद वहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट इनकम या डिविडेंड इनकम जनरेट करके देती हैं. क्लियर? सो इनमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है मैडम? दिस ट्रस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स. नंबर 1 ट्रस्टी, नंबर 2 स्पॉन्सर, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर. ट्रस्टी, they are required to be registered with SEBI and they are required to invest at least 80%, ठीक है, of the asset that is generated. Then sponsors, स्पॉन्सर कौन कौन हो सकता है मैडम? अ बॉडी कॉर्पोरेट, LLP, प्रमोटर और कंपनी जिनका नेटवर्थ एटलीस्ट 100 करोड़ हो, ठीक है. दे मस्ट होल्ड एटलीस्ट 15% ऑफ द टोटल इनविट विद अ मिनिमम लॉक इन ऑफ 3 years. स्पॉन्सर्स के लिए मिनिमम 3 साल का लॉक इन होगा. स्पॉन्सर्स कौन कौन होते हैं हमने वो भी पढ़ लिया. इनके अंदर एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी होगा और एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा. व्हाट दे आर डूइंग मैडम? अगेन again similar to RIT, they are also taking fund from the public and investing in infrastructure sector. This is also one kind of instrument. Clear? So अभी तक मैंने जो जो पढ़ा,
अभी तक जो मैंने पढ़ा, Part A, I studied, madam, what is financial market, what is the functions of financial market, what are the types of financial market, जहाँ पे मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ा. फिर मैंने पढ़ा what are the functions of capital market, what is the need of capital market, what is सिक्योरिटी मार्केट. कैपिटल मार्केट का एक सेगमेंट, सिक्योरिटी मार्केट उसके फंक्शंस, और सिक्योरिटी मार्केट के सेगमेंट्स, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. उसके बाद पार्ट बी पढ़ा मैंने इस चैप्टर का, दैट इज SCRA, SEBI, Depository and Companies Act. These four are the regulatory authorities or regulatory acts we can say for the entire security market, for all the participants of security market. Participants मतलब मैडम issuer जो securities issue कर रही है इस मार्केट में आके, वेरियस कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज जो हेल्प कर रही है इशूअर को और इन्वेस्टर्स को इस कैपिटल मार्केट में एंटर होने के लिए और डील करने के लिए. एंड थर्ड इज द इन्वेस्टर्स. ओके, तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए ये 4 एक्ट्स आए. पार्ट सी मैंने पढ़ा व्हाट आर द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें मैंने पढ़ा व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, what is equity shares with differential voting rights, and the very important the conditions which is to be satisfied for issuing differential voting right shares, and what is preference shares and its type. ये 3 जो है वो कंपनी के कैपिटल का पार्ट बनते हैं. फिर मैंने पढ़ा what is debentures, what are its features and what are its types. ठीक है, what is bonds and what are the types of bonds I studied. ठीक है, ये तीनों जो हैं ये कंपनी के, ये दोनों जो हैं ये कंपनी की डेब्ट सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करते हैं. फिर मैंने कुछ अलग तरीके के, अगर मुझे फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ डील करना है तो कैसी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैंने पढ़ा FCCB एंड FCEB. सेम कंपनी का बॉन्ड होल्डर, सेम कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर, सेम कंपनी का जिस कंपनी का बॉन्ड होल्डर है उसी कंपनी के आपको इक्विटी शेयर्स नहीं मिलेंगे बट किसी और कंपनी के मिलेंगे, दैट इज FCEB. देन मैंने पढ़ा IDR एंड GDR. ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ा डेरिवेटिव, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज a financial contract which involves buying and selling of various securities. ठीक है, at a predetermined price at a predetermined date, the value of which is deriving from an underlying asset. फिर मैंने पढ़ा वारंट, एक ऑप्शन जो कंपनी देती है वारंट होल्डर्स को कि एक टाइम के बाद आपके इक्विटी शेयर, आपके वारंट्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एट अ एक्सरसाइज प्राइस. फिर मैंने पढ़ा रिट एंड इनविट, ये एक ऐसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का पार्ट है, ये एक ऐसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का पार्ट है जो पब्लिक से फंड लेते हैं और इसको इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर्स में, और इसके फीचर्स पढ़े. और फिर हमने पढ़ा व्हाट इज इनविट. अगेन दे ऑल्सो टेक फंड फ्रॉम पब्लिक एंड इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और इसके एलिमेंट्स पढ़े हमने, 4 एलिमेंट्स. ठीक है, 4 एलिमेंट्स पढ़े हमने इसके, दैट इज ट्रस्टी, स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर. क्लियर? Next we will deal with part D, that is the last part of this chapter, जिसमें हम पढ़ेंगे who all are the capital market पार्टिसिपेंट्स. कैपिटल मार्केट के कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? अगर मैं आपको नाम ही बताऊं तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी QIB, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, राइट, वेंचर कैपिटल, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. ठीक है, प्राइवेट इक्विटी, एंकर इन्वेस्टर, एंजल फंड्स. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. पार्ट डी फिनिश करेंगे रिवीजन का, एंड देन वी विल कैरी ऑन विद द सेकेंड चैप्टर. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.